Good morning students. Today we will learn about matter in our surrounding and this is for class 9. Okay. In the previous lecture we already learned about what is matter and what are some of the properties of matters. Okay. My dear students, what we learned? We learned that matter is nothing but the substance that occupies a space and has mass. Okay, for example, this is the duster. Okay, this duster will occupy the space, and when we measure it, this duster have some weight. Okay, so today we will learn about matter. Okay, a state of matter, different state of matter. For example, solid, liquid, gas. These are the different state of matter. Okay, and matter can be classified into solid, liquid, and gas on the basis of interparticle force and the arrangement of the particles. Means on the basis of the arrangement of the particles, matter are classified into solid, liquid, and gas. In the case of the solid, my dear students, the force of attraction between the two particles is very high. It will be greater than that of liquid or gas. Okay? When we compare the force of attraction between two particles, in the case of the solids, in the case of the liquids, and in the case of the gas, the force of the attraction will be much more greater in the case of the solid as compared to liquid. Okay? When we compare liquid and gas, the force of attraction between the particle is much more greater in liquid as compared to solid, as compared to gas. Okay? क्या बताया मैंने कि जो force of attraction है, ठीक है, किसके बीच में? Between the molecules of solids, ठीक है, between the atoms of solids. Okay? जो ये force of attraction है, ठीक है, वो क्या है? सॉलिड केस में सबसे ज्यादा है. किसके केस में सबसे ज्यादा? सॉलिड केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा. किससे? एज कंपेयर टू लिक्विड एंड एज कंपेयर टू गैस. ठीक है, इसलिए जो बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द केस ऑफ द सॉलिड इज मच मोर हायर देन लिक्विड एंड गैस. दैट्स व्हाई द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड. And because the particles are closely packed, they have fixed volume. Okay, but in the case of the liquid, these particles are little bit far away from each other as compared to the solids. That's why the liquid can flow. Okay, and the force of attraction in the case of the liquid is less as compared to that of the force of the attraction between the molecules or atom of solids. That's why liquid can flow but solid cannot flow. And in the case of the gas, what we will observe, the particles is at very high distance because the force of attraction is very weak between the atoms or molecules. That's why it can flow and it will occupy the volume in which container we will put the gas. ओके, जिस भी कंटेनर में आप गैस को पुट करो वो उस गैस का क्या होगा? उस कंटेनर का शेप ले लेता है. दैट मींस गैस हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम. ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ द interparticular force and the arrangement of the particles, so matters are classified into solid, liquid and gas. Concept clear? Okay, these three forms of the matter are interconvertible by increase or decrease in pressure and temperature. For example, ice can be converted from solid to liquid by increasing the temperature. And मैंने क्या बोला? जो आपका arrangement है पार्टिकल का, on that base matter are classified into solid, liquid and gas. My dear students, this state of matter will interchange with each other. Because of pressure, temperature. Okay? मैंने आपको जब ज्योग्राफी पढ़ा तो आप क्या बताया था? Pressure. For closed system, pressure is directly proportional to temperature. Means if we increase the temperature, the pressure will
also increase. PV is equal to mRT. This is the relation. This is the equation for the ideal gas equation. PV is equal to mRT. ओके, तो क्या है यहाँ पे जो प्रेशर है क्या रिलेशन? टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मींस इफ वी इंक्रीज द प्रेशर द टेम्परेचर विल इंक्रीज. सो with the influence of pressure and temperature, the state of matter will interconverge between them. For example, take the example of the solids. When we increase the temperature, when we supply heat to the solids, it will melt, and it will melt and convert it into liquid. Means in the solid, the particles are closely packed, and because of the heat, when we supply heat, the kinetic energy of the solid will increase. And what is kinetic energy? Beta, kinetic energy is equal to half mv square. When the kinetic energy will, because kinetic energy is the function of the temperature. When the kinetic energy will increase, the distance between the randomness of the particles will increase, and because the randomness of the particles will increase, the distance between the particles is more and more. Okay, that's why solids gets converted into liquid when we supply heat, and liquid get converted into gas when we supply heat. Heat means we will increase the temperature. Similarly, when we decrease the temperature, the gas will convert it into what? Liquid. If we increase the pressure, the gas will convert it into liquid. For example, at your home, you all use LPG. What is done in the cylinder of LPG? The liquefied petroleum gas. Gas is taken at high pressure inside the cylinders, and because of this high pressure, what happened? The gas will convert it their state, and they will convert it into what? Liquid. Okay? तो हमेशा याद रखना, जो मैटर होता है, on the base of the arrangement of the particles, it will classify into three types, that is solid, liquid and gas. And these states of the matter have interconversion properties due to the influence of pressure and temperature. Okay? Now we will study. Now we will see some of the properties of solid, liquid and gas. Okay? Shape and volume. First property is shape and volume. Minus 10 solids have fixed shape and volume. The shape and the volume of the solid will not change according to the change in the container. That's why what we say, the solids have fixed shape and volume. But in the case of the liquid, no fixed shape. Why? Liquid का क्या होता है? Fixed shape नहीं होता. क्यों? Because of the उसके nature क्या होता है? Flow करने की nature होता है. क्योंकि उसमें क्या fluidity होती है. Because of the nature कि वो flow कर सकता है, क्या होता है उसका? Fixed shape नहीं होता है. जिस कंटेनर में डालो उसी कंटेनर का शेप ले लेगा. ठीक है? अब अपने घर पे देखो, वाटर को लो, जब आप उसको बकेट में लेते हो बकेट का शेप ले लेता, जब उसको ग्लास में लेते हो ग्लास का शेप ले लेता. That means liquid have no fixed shape, but liquid has fixed volume, but its volume will not change. Suppose in the case 1 liter water in the mug or 1 liter water in the bucket, their volume remains the same. The volume will not change. So, in the case of the liquid have not fixed it, but they have fixed volume. Gas, in the case of the gas has neither fixed shape nor fixed volume. Means गैस को जिस भी कंटेनर में रखेंगे वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा. ठीक है? और जैसे गैस को रूम में अगरबत्ती जलाओ, पूरे रूम में क्या होता है? डिफ्यूज कर जाता है. ठीक है? तो इसलिए क्या होता है उसका नाइदर डेफिनिट शेप होता है नॉट डेफिनिट वॉल्यूम होता है. ठीक है? ये सब आप नीचे क्लास में पढ़े होंगे. एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी मींस क्या? काइनेटिक एनर्जी कम होती है. क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम होती है, दैट्स व्हाई जो पार्टिकल्स होते हैं किसके? सॉलिड्स के, वो हाईली क्लोजली पैक्ड होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है? उनमें रैंडमनेस नहीं होती है. ठीक है? अगर मानो जिसमें हाई काइनेटिक एनर्जी हो, क्या होगा? उसको दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा. जब दो पार्टिकल के बीच में क्या होगा? डिस्टेंस ज्यादा होगा, दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो वीक फोर्स होगा. जब किसी में वीक फोर्स होगा तो उसकी नेचर क्या होगा? फ्लो करने की नेचर होती है. फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ लिक्विड और गैस, लिक्विड और गैस की क्या नेचर है? वो फ्लो करती है. क्यों? क्योंकि उसके बीच में क्या एनर्जी हाई होती है.
the kinetic energy is very high as compared to solid or gas, solid or liquid. My dear students, जो kinetic energy है, जो energy है, सबसे ज्यादा किसके पास होगा? गैस के पास। उसके बाद लिक्विड के पास। सबसे कम एनर्जी किसके पास होगा? सॉलिड के पास। ठीक है? इसके बाद क्या? कंप्रेसिबिलिटी। We cannot compress solid and liquid, but gas can only be compressed. That's why in our cylinders, LPG cylinders, we compress the natural gas, LPG, liquefied petroleum gas, and use it in kitchen. Okay? Always remember that solid and liquid cannot be compressed. The only state of matter that can be compressed is the gas. So gas can only be compressed. Okay? After arrangement of the molecules. My dear student, मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ क्या? जो एटम का अरेंजमेंट है, क्या है? जो सॉलिड केस में है, वो क्या? क्लोजली पैक्ड है। क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड क्या होगा? दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा। ठीक है? रेगुलर एंड क्लोजली अरेंज्ड। इन द केस ऑफ लिक्विड रैंडम होता है, लिटिल स्पेस होता है उसके बीच में। ठीक है? और गैस का होता है रैंडम एंड मोर स्पेस होता है। ठीक है? फ्लूइडिटी, सॉलिड कैन नॉट फ्लो। सपोज ये सॉलिड है और मैं इसको कहीं पे रख दूं, क्या ये फ्लो कर सकता अपने आप? नहीं कर सकता। ठीक है? बट लिक्विड एंड गैस कैन फ्लो। ओके? व्हाई लिक्विड एंड गैस कैन फ्लो? लिक्विड एंड गैस कैन फ्लो because the intermolecular force of attraction between the liquid and gas as compared to solid is less. That's why liquid or gas can flow. Okay? Movement negligible. Okay? In the case of solid, there is no movement. Depend on interparticular attraction. लिक्विड के केस में जो मूवमेंट है किस पे डिपेंड करेगा? इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन के बीच में, दो पार्टिकल के बीच का जो अट्रैक्शन होगा उस पे डिपेंड करेगा मूवमेंट ऑफ दैट पार्टिकल्स। ओके? फ्री, कांस्टेंट, रैंडम। क्या होता है? गैस का जो पार्टिकल है वो फ्री होता है, तो मूव एनीवेयर। ठीक है? कहीं पर भी जाके डिफ्यूज कर देता है। ठीक है? जहां पे हाई प्रेशर, लो प्रेशर हो, कहीं पे वो मूव कर देगा गैस और क्या डिफ्यूज कर देगा। ठीक है? आफ्टर मूवमेंट इंटरपार्टिकुलर स्पेस, जो इंटरपार्टिकुलर स्पेस है इन द केस ऑफ सॉलिड क्या बेटा? बहुत लेस है। लिक्विड में क्या है? सॉलिड की कंपेयर थोड़ा ज्यादा है इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन फॉर इंटरपार्टिकुलर स्पेस, बट इन द केस ऑफ गैस जो इंटरपार्टिकुलर स्पेस है क्या है? मोर एंड मोर हाई है। ठीक है? तो हमेशा याद रखना। तो ये सब तुम लोग पढ़ चुके हो, मैं थोड़ा एक ब्रीफ दे रहा हूं। ठीक है? उसका इंटरपार्टिकुलर अट्रैक्शन, सबसे इंटरपार्टिकुलर अट्रैक्शन किसमें सबसे ज्यादा होगा? इन द केस ऑफ सॉलिड। लिक्विड में क्या होगा? एज कंपेयर टू सॉलिड कम होगा इंटरपार्टिकुलर अट्रैक्शन। ठीक है? और गैस में क्या होगा? बहुत ज्यादा कम होगा। ठीक है बेटा? ऊपर करो ना। डेंसिटी, अब याद रखो, जब पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो क्या होगा? एक इसमें मोर एंड मोर पार्टिकल्स होंगे, अधिक क्लोजली पैक्ड होंगे। जब कोई भी चीज अधिक क्लोजली पैक्ड होता है, सपोज करो ये रूम में अभी इसमें 5 स्टूडेंट हैं। ठीक है? मैं क्या करूंगा? इसमें 50 स्टूडेंट को भर दूंगा। क्या होगा? द डेंसिटी ऑफ दिस रूम विल इंक्रीज। व्हाई? बिकॉज़ जो स्पेस है मूवमेंट के लिए, हमारा 5 लड़का है क्लास में, उसकी मूवमेंट का स्पेस क्या ज्यादा है। जब 50 लड़का इस क्लास में आ जाए क्या होगा? हमारा स्पेस इस मूवमेंट करने का कम हो जाएगी। ठीक है? तो याद रखना, डेंसिटी होगा क्या बेटा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है? तो याद रखना, जो सॉलिड के केस में क्या होगा? डेंसिटी हाई होगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल क्या बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। दैट्स व्हाई द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज हाई। लिक्विड में क्या होगा? सॉलिड से थोड़ा कम डेंसिटी होगी। गैस में क्या होगा? सॉलिड लिक्विड से भी कम डेंसिटी। सबसे कम डेंसिटी किसमें होगा बेटा? इन द केस ऑफ गैस। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं वो क्या है? बहुत दूर दूर होते हैं। जो स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में इन द केस ऑफ गैस वेरी हाई होता है। दैट्स व्हाई द गैस हैव लोएस्ट डेंसिटी। ओके? सबसे हाई डेंसिटी किसका होगा? सॉलिड में। सॉलिड के बाद किसका होगा डेंसिटी हाई? लिक्विड का। सबसे कम डेंसिटी किसका होगा बेटा? गैस का। ठीक है? अब रेट ऑफ डिफ्यूजन, क्या ये जो सॉलिड है ना डस्टर आपका सॉलिड, क्या ये डस्टर इस रूम में रख रहा हूं ऑटोमेटिक क्या होगा? आफ्टर सम टाइम पूरे रूम में घुमाएगा ये डस्टर? नहीं। जिस स्पेस पे रखो वहीं पे ये क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। इफ द एक्टिंग फोर्स क्या हो? इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है? समेशन ऑफ ऑल द फोर्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या होगा? क्या ये डस्ट कभी मूव करेगा? नहीं। बट आप क्या करो? अपने घर में अगरबत्ती जलाओ, क्या होगा? पूरे
उसका मूव कर जाता है, क्या करता है ना। इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे अधिक हाई किसका होगा बेटा, सबसे लो किसका होगा, नेग्लिजिबल होगा, नहीं के बराबर होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका, सॉलिड का, ठीक है। इट डिपेंड ऑन इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन। इन द केस ऑफ लिक्विड द रेट ऑफ डिफ्यूजन विल डिपेंड ऑन इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन, ठीक है। बट इन द केस ऑफ गैस क्या होता है बेटा, जो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन होता वेरी हाई होता, वेरी हाई होता। इसलिए जब हम लोग मार्केट से गुजरते हैं, जब हमारे मनपसंद का कोई खाना बनाता क्या होता, उसका स्मेल हम तक आता है, ठीक है। क्यों, बिकॉज ऑफ गैस क्या होता है, डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन वेरी हाई होता है, ठीक है। अब देखो एटॉमिक व्यू ऑफ द थ्री स्टेट ऑफ मैटर। अब देखो यहां पे देखो, ये क्या एक एटम है, दूसरा एटम है, तीसरा एटम है। अब देखो ये क्या सॉलिड का केस में, इसमें क्या है, जो भी एटम है क्या है बेटा, एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड हैं, ठीक है। और एक दो एटम के बीच में क्या स्पेस बहुत कम है, ठीक है। दैट्स व्हाई द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन दीस टू एटम इज हाई, ठीक है बेटा। तो ये केस हो गया आपका सॉलिड केस में। अब देखो लिक्विड में देखो, एक थोड़ा नीचे लिक्विड में देखो, बस लिक्विड में देखो, इसमें एटम को देखो क्या है, अधिक क्लोजली पैक्ड है, स्पेस नहीं दिख रहा। बट इन द केस ऑफ लिक्विड आपको थोड़ा बहुत स्पेस दिख रहा है, मींस जो दो एटम के बीच में जो स्पेस है लिक्विड में क्या है, सॉलिड के कंपेयर में हाई है, ठीक है। दैट्स व्हाई जो सॉलिड में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा, बट लिक्विड में क्या होगा, थोड़ा कम होगा। इसलिए क्या है, एटम सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा अधिक डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब गैस को देखो बेटा, लिक्विड से भी अधिक दूर है एटम्स, ठीक है। क्या है, दो एटम के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है, किसके केस में, इन द केस ऑफ द गैस। तीनों का कंपेयर देख लिया विद डायग्राम, ओके। आगे अब देखो एक प्रोसेस होता है, बस इवोपरेशन होता क्या है, सिंपल देखो, बचपन से ही पढ़ते होंगे क्या, रेन साइकिल, वाटर साइकिल के बारे में पढ़ते हो। क्या होता है, वाटर इवोपरेट्स करता है, व्हाई, क्योंकि हीट के कारण, टेम्परेचर के कारण इवोपरेट करता है। इवोपरेट क्या करता है बेटा, राइज करता है, ठीक है। जब वो ऊपर राइज करता है, वो क्या करता है, ऊपर जाके क्लाउड का फॉर्मेशन करता है, वही क्लाउड क्या करता है, कंडेंस करता है, फिर बारिश होती है, ठीक है बेटा। तो ऑलवेज रिमेंबर इट दैट व्हाट इज इवोपरेशन। सिंपली इवोपरेशन क्या होता है, लिक्विड से, लिक्विड वाटर के लिक्विड स्टेट से जो गैसियस स्टेट में कन्वर्जन होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवोपरेशन। याद रखना बेटा, इवोपरेशन के लिए कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है, नो नीड ऑफ एनी फिक्स टेम्परेचर, ठीक है। जैसे बॉइलिंग क्या होता है, एक किसी भी लिक्विड का ले लो, ठीक है, सबका अपना अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। एवरी लिक्विड हैव इट्स ओन बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल वाटर विल बॉईल एट 100 डिग्री सेल्सियस। कभी सुने हो कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे इवोपरेट करेगा या 50 डिग्री सेल्सियस पे ही इवोपरेट नहीं बेटा, कोई भी टेम्परेचर हो, नो नीड, क्या होगा, इवोपरेशन होगा, ठीक है। मे बी सनलाइट थोड़ा भी हीट मिले, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से थोड़ा भी ज्यादा हीट मिले, क्या होगा, इवोपरेशन होते रहेगा, ठीक है। और बिकॉज ऑफ दिस इवोपरेशन क्या होता है, हम लोग को रेनफॉल होती है, ठीक है। याद रखना, हमेशा याद रखना, इवोपरेशन क्या है, वाटर का लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना। इसलिए कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है, ठीक है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो, फ्रीजिंग पॉइंट हो, मेल्टिंग पॉइंट हो, ये सब क्या एट ए फिक्स टेम्परेचर होता है। एंड क्या होता है, वो हर एक लिक्विड का अलग अलग होता है। बट इवोपरेशन कोई ऐसा फिक्स टेम्परेचर नहीं होता, किसी भी टेम्परेचर पर इवोपरेशन स्टार्ट होगा। मे बी अभी देखो क्लाउडी डे है, क्लाउडी डे में भी इवोपरेशन होता है बेटा, याद रखना। जब क्लाउडी डे है, क्लाउडी डे में भी इवोपरेशन हो सकता है, ठीक है। जो क्लाउडी डे होता है उसमें भी इवोपरेशन हो सकता है, ठीक है। अब देखो द फिनोमेना बाय व्हिच मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड स्टेट अंडरगो ए स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन टू गैसियस फेज। स्पॉन्टेनियस सडन होता है, कोई फिक्स टेम्परेचर पे। यहां पे स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे नहीं होगा, इंस्टेंट में हो जाएगा, ठीक है। गैसियस फेज एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपरेशन। जब बॉइलिंग पॉइंट के बिलो किसी भी टेम्परेचर पे द टेम्परेचर इज नॉट फिक्स, इंस्टेंटेनियस क्या हो, फेज में चेंज हो। कौन से फेज,
लिक्विड स्टेट से क्या हो, गैसियस स्टेट में कन्वर्जन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवोपरेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेजुअल ड्राइंग ऑफ डैम्प क्लॉथ इन इज कॉज्ड बाय इवोपरेशन ऑफ वाटर। कभी देखते हो हमारे घर में क्या होता है, क्लाउडी रेनी सीजन है, उसमें भी क्या होता है, कपड़ा अगर मम्मी सुखाती है वो भी क्या होता है, सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। कैसे? बिकॉज ऑफ इवोपरेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, इवोपरेशन कैसा प्रोसेस है, एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। देयर इज नो नीड ऑफ एनी फिक्स्ड टेंपरेचर, इट विल स्टार्ट एट एनी इंस्टेंट, एट एनी स्पॉट, किसी भी पॉइंट पे वो स्टार्ट हो जाएगा। बट कब तक होगा, जब तक उसका वो क्या हो, तो बॉइलिंग पॉइंट से कम हो टेंपरेचर, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के बिलो क्या होगा, आपको हमेशा याद रखना, इवोपरेशन होगा, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन, सिंपली इवोपरेशन होता है क्यों, जब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज टेंपरेचर, ठीक है। टेंपरेचर, जब टेंपरेचर तो क्या होगा, हीट होगा। तुम देखो किसी भी चीज में फेज चेंज करने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, अगर देखो इन द केस ऑफ लिक्विड क्या है, दो एटम सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा स्पेस पर एग्जिस्ट करता है, और गैस में क्या होता है, और ज्यादा स्पेस में एग्जिस्ट करता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड से किसमें जा रहे हैं, गैस में, हमको क्या होगा, उस दोनों के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करना पड़ेगा, सो दैट क्या होगा, जो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में जो दो पार्टिकल हैं उसका ब्रेक हुआ, क्या होगा, एटम थोड़ा दूर जाएगा। जब एटम दूर जाएगा क्या होगा, वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो याद रखना, जो फर्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट इवोपरेशन, rate of evaporation is temperature. The rate of evaporation increase with increase in the temperature. जो टेम्परेचर को इंक्रीज करो, रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा बेटा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। सरफेस एरिया, जहां पे मोर सरफेस एरिया होगा क्या इवोपरेशन रेट ज्यादा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ज्यादा पार्टिकल्स, लिक्विड का ज्यादा पार्टिकल्स क्या होंगे, सनलाइट के कांटेक्ट में आएंगे। जब ज्यादा पार्टिकल सनलाइट के कांटेक्ट में क्या होंगे, ज्यादा इवोपरेशन होगा। मींस if we increase the surface area, the rate of evaporation will increase. For example, अगर ग्लास में वाटर रखो और एक जो टब टाइप होता है जिसका सरफेस एरिया बड़ा, उसमें रखो, सबसे ज्यादा इवोपरेशन किसमें होगा, टब में होगा, एज कंपेयर टू ग्लास, ठीक है। तो the rate of evaporation increase with increase in the surface area. Humidity क्या होता है बेटा, humidity means the presence of water vapor in the air, that is called humidity, ठीक है। क्या कराते हैं, जब presence of water vapor in air is called humidity। अब देखो ऑटोमेटिक, देखो जब एयर में, एयर की क्या एक कैपेसिटी होगी, जिस हद तक वो क्या करेगा, वाटर को होल्ड कर सकता है, ठीक है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को सुनता होगा, एक टर्म होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। मतलब क्या, एक प्रॉपर लिमिट के बाद क्या होगा, उस एयर की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, किसको, वाटर को एब्जॉर्ब करने की। अगर ज्यादा ह्यूमिडिटी है, इवोपरेशन क्या होगा, कम होगा बेटा, ठीक है। अगर ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो इवोपरेशन क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि एयर क्या होता है, सैचुरेशन कंडीशन को अचीव कर लेता है, ठीक है। क्या होगा, देखो मान लो ये एयर है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, जब इसमें ऑटोमेटिक ऑलरेडी पहले से बहुत ज्यादा वाटर वेपर है, क्या ये मोर वाटर वेपर को ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, क्योंकि हर एक चीज की एक कैपेसिटी होती है। इसलिए मोर ह्यूमिडिटी लेस इवोपरेशन, टेम्परेचर हाई इवोपरेशन रेट इज हाई, सरफेस एरिया हाई इवोपरेशन रेट इज हाई। ह्यूमिडिटी क्या होना चाहिए, हाई इवोपरेशन के लिए लो ह्यूमिडिटी होना चाहिए, ठीक है। विंड स्पीड क्या होगा, जितना ज्यादा रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन विंड स्पीड, जितना ज्यादा क्या होगा आपको विंड का स्पीड होगा, क्या होगा, उतना ज्यादा एयर क्या होंगे, हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में आएंगे, वार्म और कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आएंगे। जब वो वार्म एयर के कांटेक्ट में आएंगे क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा इवोपरेशन होगा। मींस क्या होगा, विंड स्पीड हाई कर दो, क्या होगा बेटा, इवोपरेशन रेट हाई हो जाएगा। मतलब इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, द इवोपरेशन रेट विल हाई, इफ वी इंक्रीज द सरफेस एरिया, द टेम्परेचर द इवोपरेशन रेट इज हाई, इफ वी increase the humidity in air, the evaporation rate will be low, decrease. If we increase the wind speed, the evaporation rate will increase. These are some of the factors that affect the evaporation rates. Now, cooling due to evaporation. Simple देखो, evaporation में क्या होता है, सिंपल हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जब
हीट दो टाइप के होते हैं, एक क्या होते हैं लेटेंट हीट, एक होता है सेंसिबल हीट। लेटेंट हीट वैसा हीट होता है जो क्या होता है हम और आप, ठीक है। लेटेंट हीट कैसा हीट होता है, सिंपल, द हीट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज। फॉर एग्जांपल अब देखो एक चीज घर पे ऑब्जर्व करता होगा कि जिस पॉइंट पे बॉइलिंग स्टार्ट होता है, ठीक है, जिस पॉइंट पे बॉइलिंग स्टार्ट होता है उस पे क्या होता है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। हम लोग हीट दे रहे हैं बट देयर इज नॉट इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो ये हीट ज्यादा करना बेटा, ये हीट क्या करता है मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ब्रेक करने के लिए जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं छिपा हुआ हीट बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है जब भी इवोपरेशन हुआ वो क्या, और इवोपरेशन में क्या होता है फेज चेंज होता है, मींस जो हीट है क्या करेगा वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है दो पार्टिकल के बीच में उसको ब्रेक करने में चला जाता है, इसलिए बॉडी टेम्प वो हीट सक कर लेता है और क्या होता है बॉडी कूल हो जाता है, ठीक है। तो कूलिंग ड्यू टू इवोपरेशन, ड्यूरिंग इवोपरेशन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड absorb energy from the surrounding to overcome the interparticle force, ठीक है। इंटरपार्टिकल फोर्स को क्या करना है ओवरकम करने के लिए वो क्या करता है हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और जो हीट जो एनर्जी क्या करे इंटरपार्टिकल फोर्स को क्या करे बेटा ओवरकम करे, उसी हीट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा लेटेंट हीट बोलते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन एंड अंडरगो फेज चेंज, और क्या हो फेज चेंज में चला जाता है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल, यही एब्जॉर्प्शन जो होता है हीट का वो क्या करता है सराउंडिंग को कूल कर देता है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल है जो स्वेटिंग कूल्स डाउन आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी से पसीना निकलता होता है हमारा बॉडी कूल डाउन हो जाता है आफ्टर फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे फिजिकल नेचर, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे किसके मैटर का। A physical property is that aspect of matter that can be observed or measured without changing in nature or composition। जो फिजिकल नेचर क्या होता है बेटा, सपोज करो जो भी चीज हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, जिसमें क्या हो उस मैटर का कंपोजिशन चेंज ना करे और क्या ना चेंज करे उसका नेचर चेंज ना करे, ठीक है। अगर उस कुछ क्वांटिटी को मेजर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर, ये अमाउंट ऑफ मैटर से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर क्या है एक फिजिकल क्वांटिटी से, ठीक है, जो नो मैटर कितना भी अमाउंट क्यों ना हो अगर एक टेम्परेचर सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करो उसकी टेम्परेचर क्या होगी सेम होगी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड अपीयरेंस, कलर, ऑर्डर, डेंसिटी, टेक्सचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, these are the physical properties of matter. For example, liquid boil at 100 degrees Celsius and liquid freeze at what 0 degrees Celsius। ये क्या एक फिक्स होता है नो मैटर कितने अमाउंट ऑफ वाटर क्यों ना हो, ठीक है। ये कभी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है। एवरीथिंग दैट वी कैन टच, सी, हियर, टेस्ट and also smell is matter। जो भी चीज हो जिसको आप टच कर सके, स्मेल कर सके, फील कर सके, वो सब क्या बेटा मैटर है। क्यों? क्योंकि जिसको भी हम लोग टच कर सकते हैं, जिसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं स्मेल कर सकते हैं, जिसको भी हम फील कर सकते हैं, वो सब क्या करेगा उसके पास मास होगा एंड वो क्या करेगा स्पेस में अपना एक जगह को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ